السلام علیکم ناظرین، رائل ناولز کی طرف سے میاں ذیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہماری زندگی میں سے ایک ایک کر کے دن روزانہ کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ کوشش کیا کریں جن میرے بہن بھائیوں کے والدین سروں پر حیات نہیں ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔ ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کی دعا کیا کریں، اور کم و بیش دن میں 2 سے 3 دفعہ آیت الکرسی لازمی پڑھا کریں۔ اور دوسرا سب سے اہم بات کہ اپنے ہمسایوں کا خاص کر خیال رکھا کریں۔ جو اس وقت حالات اس ملک کے چل رہے ہیں، جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں پر لازمی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کن حالات میں ہیں، ان کی کیا مشکلات ہیں۔ تو جتنا میرے بہن بھائیوں سے ہو سکے یہ کوشش کیا کریں کہ ان کی پریشانی ہے یا ان کی کوئی پرابلم ہے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ سولو کر سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناظرین، نادان لڑکی کی خوفناک داستان کا تیسرا حصہ۔ اب نادیہ کو یقین ہو رہا تھا کہ واقعی میں شازیہ اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ اس وجہ سے نادیہ آہستہ آہستہ سے اسٹور روم کی طرف بڑھنے لگی اور کہنے لگی، اب بہت ہوا بھابھی، اب آ جاؤ باہر۔ یہ کہتے ہوئے جب نادیہ نے اسٹور روم میں جا کر دیکھا تو وہاں شازیہ زمین پر بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی، جیسے کوئی لاش پڑی ہو۔ نادیہ نے وہیں کھڑے رہ کر شازیہ کو آواز دی، پر شازیہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بالکل ویسے ہی لیٹی رہی۔ نادیہ نے اسٹور روم کی لائٹ جلائی تو بلب جلتے ہی بند ہو گیا، کیونکہ اسٹور روم میں اندھیرا تھا، تو اس وجہ سے نادیہ کو شازیہ کا چہرہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ نادیہ حیرت سے شازیہ کی طرف دیکھنے لگی، اور جیسے ہی نادیہ نے ایک اور قدم شازیہ کی طرف بڑھایا تو اسی وقت اچانک شازیہ بنا ہاتھوں کی مدد سے ایک قدم سیدھی کھڑی ہو گئی، اور اس کے سارے بال اس کے چہرے پر آ گئے۔ یہ دیکھتے ہی نادیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نادیہ نے سہمی ہوئی آواز میں پھر سے شازیہ کو کہا، بھابھی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اسی لمحے شازیہ نے اپنا ہاتھ نادیہ کی طرف بڑھایا۔ جب نادیہ نے شازیہ کا ہاتھ دیکھا تو اس پر کافی سارا خون لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی نادیہ پوری طرح سے ڈر گئی اور شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ سے اپنے قدم پیچھے لینے لگی۔ جوں جوں نادیہ پیچھے جا رہی تھی، شازیہ کا ہاتھ بھی نادیہ کے قریب آ رہا تھا، جبکہ شازیہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شازیہ کا ہاتھ لمبا ہو رہا ہے۔ نادیہ شازیہ کو بھابھی بھابھی کرتی ہوئی پیچھے ہٹ رہی تھی، اور جیسے ہی نادیہ دروازے سے باہر نکل آئی تو نادیہ نے فوراً چیخیں مار کر بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگتے ہوئے نیچے جانے لگی۔ اتنے میں نادیہ کی چیخیں سن کر آمنہ بھی دوڑتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی، اور اس نے نادیہ کی طرف دیکھا تو نادیہ فیصل کو گود میں لیے سیڑھیوں سے جلدی جلدی نیچے کی طرف آ رہی تھی، اور اس کے پیچھے کوئی ڈراؤنی سی عورت جس کے لمبے سے ہاتھ تھے وہ سیڑھیوں پر کھڑی ہنس رہی تھی، اور جیسے ہی آمنہ نادیہ کے پاس پہنچی تو وہ عورت اچانک وہاں سے واپس چلی گئی۔ یہ سب دیکھ کر آمنہ بھی ڈر سے کانپنے لگی۔ اس نے جلدی سے نادیہ کے ہاتھ سے فیصل کو لیا، اور دونوں ماں بیٹی بھاگ کر آمنہ کے کمرے میں چلے گئے اور دروازے کو اندر سے بند کر لیا، اور نادیہ ڈر سے کانپتی ہوئی دبی ہوئی آواز میں رونے لگی۔ آمنہ نے ایک ہاتھ سے فیصل کو گود میں لیا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے نادیہ کو اپنے گلے سے لگایا، اور دونوں ماں بیٹی تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد آمنہ نے نادیہ کو پوچھا، بیٹی وہ عورت کون تھی اور یہ سب کیا تھا؟ مجھے تو شازیہ کی فکر ہو رہی ہے، ہم دونوں یہاں ہیں اور وہ بیچاری کمرے میں اکیلی ہوگی، کہیں وہ ڈراؤنی بدصورت عورت اس کے پاس نہ چلی جائے۔ نادیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، امی وہ ڈراؤنی عورت بھابھی ہی تھیں۔ آمنہ نے حیرت انگیز نظروں سے نادیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ نادیہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، ہاں امی، شازیہ بھابھی ہی تھیں، میں نے دیکھا تھا ان کو۔
आमना ने कहा, ये कैसे हो सकता है बेटी। फिर नादिया ने कॉलेज से वापस आने के बाद का सारा वाकया आमना को सुनाया। तो आमना ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, इसका मतलब कि परवीन भी जिस औरत का जिक्र कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि शाजिया ही थी। नादिया ने आमना की तरफ देखते हुए पूछा, अम्मी क्या हुआ था परवीन को। आमना ने कहा, अभी बताती हूँ। ये कहते हुए आमना ने फैसल की तरफ देखा तो वो आहिस्ता आहिस्ता से रो रहा था। आमना ने फैसल को नादिया की गोद में दिया और जल्दी से बेड की साइड टेबल की दराज से अपना मोबाइल निकाला और आगा साहब को फ़ोन करके इन्हें फ़ौरन घर आने को कहा। आगा साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। फिर आमना ने नुमान को भी फ़ोन करके घर आने का कहा तो नुमान ने कहा, अम्मी पर सब खैरियत तो है। आमना ने कहा, बस खैरियत ही नहीं है, तुम जल्दी से घर जाओ। नुमान ने कहा, जी अम्मी मैं अभी निकल रहा हूँ। फिर आमना ने नादिया को कहा, बेटी फिक्र नहीं करो, तुम्हारे अब्बू और भाई आ रहे हैं। नादिया ने कहा, अम्मी भाभी ने मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश की थी जबकि मैंने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा था। ये कहते हुए नादिया फिर से रोने लगी। आमना ने कहा, बेटी तुम रो मत, वो तुम्हारी भाभी नहीं है बल्कि शाजिया के अंदर कोई हवाई चीज आ गई है। हमारी शाजिया तो बहुत भोली है। ये जो कुछ भी हो रहा है इसी शैतानी चीज की वजह से हो रहा है। इसी वजह से मैं देख रही थी कि शाजिया के चेहरे की खूबसूरती अचानक से मध्यम कैसे होने लगी है और इसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ रहे हैं। नादिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, जी अम्मी शाजिया भाभी तो बहुत खूबसूरत हैं, पर गुज़िश्ता रात से मैं भी देख रही थी कि इतने में बाहर से गेट खुलने की आवाज़ आई। आमना ने कहा, बेटी लगता है तुम्हारे अब्बू आ गए हैं, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ, पर तब तक तुम कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद रखना जब तक मैं तुम्हें खोलने का ना कहूँ। नादिया ने कहा, जी अम्मी। ये कहकर आमना बाहर गई तो आगा साहब आ गए थे और उन्होंने आते ही आमना से पूछा, क्या हुआ, सब खैर तो है, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी जो तुमने मुझे फौरन घर बुला लिया है। आमना ने कहा, पहले आप अंदर चलकर बैठें तो सही, बताती हूँ। आगा साहब घर के अंदर आकर बैठ गए। फिर आमना ने नादिया को भी बाहर बुला लिया। नादिया फैसल को गोद में लिए बाहर आई और आगा साहब को सलाम किया, फिर इनके पास आकर बैठ गई। इस दौरान आगा साहब दोनों माँ बेटी की तरफ हैरत से देख रहे थे और फिर बोले, अब कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है। मैं दुकान छोड़कर आया हूँ, मुझे वापस भी जाना है। आमना ने वो बात दरअसल ये है कि शाजिया के ऊपर किसी शैतानी चीज़ का साया है। ये सुनते ही आगा साहब हैरत से आमना की तरफ देखते हुए बोले, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये तुम क्या फजूल सी बात कर रही हो? क्या यही बताने के लिए तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलवाया है? आमना ने कहा, मैं सच कह रही हूँ, शाजिया वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। गुज़िश्ता रात से ही शाजिया अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है और आज तो उसने नादिया को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आगा साहब ने माथे पर बल डालते हुए नादिया की तरफ देखा और नादिया से पूछा, बेटी ये तुम्हारी माँ क्या कह रही है? नादिया ने कहा, जी पापा अम्मी सही कह रही हैं, शाजिया भाभी चुड़ैल हैं। ये सुनकर आगा साहब ने तल्ख लहजे में कहा, ओ क्या हो गया है तुम माँ बेटी को? तुम्हारे दिमाग खराब हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि तुम लोग क्या कह रहे हो। एक बोली भाली लड़की को बदरूह जिन भूत तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हो। नादिया ने कहा, पापा हम सच कह रहे हैं। अभी आमना और नादिया आगा साहब से बात कर रहे थे कि इतने में नुमान भी आ गया और इनके पास बैठ गया। फिर आमना की तरफ देखते हुए बोला, जी अम्मी सब खैरियत तो है, जो आपने अचानक मुझे जल्दी में बुलाया। इससे पहले आमना कुछ बोलती आगा साहब फौरन नुमान की तरफ देखते हुए बोले, क्या तुम्हें भी इन्होंने अपनी फजूल बातों की वजह से बुलवाया है? नुमान ने हैरत से आमना की तरफ देखा और फिर आगा साहब की तरफ देखते हुए बोला, अब्बू मुझे पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। आगा साहब ने तंज करते हुए कहा, ये तुम्हारी अम्मी जान और तुम्हारी बहन को लगता है कि तुम्हारी बीवी शाजिया नहीं बल्कि कोई शैतानी चीज है। ये सुनते ही नुमान आमना की तरफ हैरानी से देखने लगा। आमना ने आगा साहब की तरफ देखते हुए कहा, ये आप बात को उलझा क्यों रहे हैं? एक बार हमारी पूरी बात तो सुन लें। आगा साहब ने कहा, तुम्हारी बात ही फजूल है तो मैं सुनकर क्या
मैंने सुनकर क्या लेना है। नुमान ने आमना की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा अम्मी बताएं आप क्या कहना चाहती हैं, मैं आपकी बात सुनना चाहूँगा। आगा साहब ने नुमान से कहा, बेटा ये लोग फजूल किस्म की अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, तुम क्या करोगे इनकी बातें सुनकर। नुमान ने आगा साहब की तरफ देखते हुए कहा, एक मिनट पापा प्लीज मुझे अम्मी की बात सुनने दें। नुमान की ये बात सुनकर आगा साहब ने एक कहका लगाया और अपने माथे को पकड़कर बैठ गए और नुमान से बोले, सुन लो बेटा तुम भी अपना शौक पूरा कर लो। नुमान ने आमना की तरफ देखते हुए कहा, अम्मी मैं सुन रहा हूँ आप बोलें। इसके बाद आमना ने नुमान को सारी बात बताई, परवीन के साथ होने वाला वाकया और फिर नादिया के साथ होने वाले वाकये के बारे में बताया। फिर नादिया ने भी वो सब कुछ बताया जो कि नादिया के साथ हुआ। नुमान ने आमना और नादिया की बातें सुनी और अपने गाल पर हाथ फेरते हुए कुछ सोचने लगा। आगा साहब ने नुमान से कहा, अरे तुम क्या इनकी फजूल बातों में आकर अपने दिमाग पर जोर डाल रहे हो। नुमान ने कहा, पापा अम्मी और नादिया सही कह रहे हैं, मैं इनकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, शाजिया में कुछ तो है। फिर नुमान ने आगा साहब को अपनी गुज़िश्ता रात वाली बातें बताईं और फिर सुबह कमरे में मिट्टी की बात बताई तो आगा साहब ने कहा, क्या ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। नुमान ने कहा, पापा बात ही इतनी अजीब सी थी कि मैंने इसको अपना वहम समझकर किसी से बात नहीं की। आगा साहब ने कहा, अच्छा तो ठीक है अभी पता चल जाएगा, बुलाओ जरा शाजिया को। नुमान ने नादिया से पूछा, इस वक्त शाजिया कहाँ है। नादिया ने कहा, मैंने इसे ऊपर के स्टोर रूम में देखा था। आमना ने कहा, अब का हमें पता नहीं, वो कहीं भी हो सकती है। इतने में अचानक शाजिया अपने कमरे से भागती हुई आई और आते ही इसने फैसल को आमना की गोद में देखा तो इसने एक गहरी सांस ली और फिर नुमान और आगा साहब की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग आज जल्दी आ गए, सब खैरियत तो है। ये सुनते ही नुमान ने कहा, शाजिया तुम सलाम करना भूल गई हो क्या। अब्बू अम्मी बैठे हैं, कम से कम इन्हें सलाम करना चाहिए था तुम्हें। शाजिया ने घबराते हुए कहा, ओ सॉरी, दरअसल मैं जब सोकर उठी तो मैंने फैसल को देखा तो वो बेड पर नहीं था, इस वजह से मैं थोड़ी घबरा गई थी, इसी घबराहट में मुझे याद नहीं रहा। आगा साहब ने शाजिया की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, ऐसे हो जाता है कभी कभी। और सुनाओ कैसी तबीयत है तुम्हारी। शाजिया ने कहा, जी अंकल अब बेहतर है। आगा साहब ने कहा, बेटी तुम सुबह से सो रही थी क्या। शाजिया ने कहा, जी अंकल। फिर आगा साहब ने कहा, क्या तुम ऊपर स्टोर रूम में गई थी। शाजिया ने कहा, नहीं तो। अंकल मैं क्यों जाऊंगी स्टोर रूम में, क्या कुछ हुआ है स्टोर रूम में। ये कहते हुए शाजिया बिल्कुल अनजान थी, जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है। आगा साहब ने कहा, नहीं बेटी कुछ नहीं हुआ। ये कहते हुए आगा साहब ने आमना और बाकी लोगों की तरफ देखा। आमना ने बिना बोले ही अपनी गर्दन नाम में हिला दी और फिर आमना ने कहा, ठीक है बेटी तुम फैसल को ले जाओ और इसे संभालो, देखो इसको भूख वगैरह तो नहीं लगी, अभी ये रो रहा था। शाजिया ने कहा, जी आंटी। ये कहकर शाजिया फैसल को लेकर अपने कमरे में चली गई। फिर आगा साहब ने कहा, देखो तुम सब जो कह रहे हो मुझे इस पर अब भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। आमना ने आगा साहब को कहा, हमारा यकीन करें हम सच बोल रहे हैं। आगा साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन अभी कोई भी शाजिया से इस बारे में बात नहीं करेगा। मैं किसी बाबा को जानता हूँ, कल इसको लेकर आऊँगा, फिर वही बताएगा क्या माजरा है। आमना ने कहा, मैं खाना लगाती हूँ। आगा साहब ने कहा, नहीं मुझे ज़रूरी काम से जाना है, तुम लोग खा लो। ये कहकर आगा साहब चले गए। फिर बाकी लोगों ने खाना खाया और अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। नुमान ने भी खाना खाकर फैसल को गोद में लेकर थोड़ी देर के लिए छत पर चला गया। असर की नमाज हो चुकी थी और छत पर धूप कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से ठंड बढ़ रही थी। नुमान फैसल को गोद में लिए छत पर टहल रहा था। इतने में नुमान ने देखा कि अचानक शाजिया छत पर आ गई, लेकिन नुमान इसको देखकर चौंक गया क्योंकि शाजिया के कपड़े पूरी तरह से गीले थे, इसके बाल भी बिखरे हुए थे और बालों से पानी टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शाजिया कपड़ों समेत नहा कर आई है। नुमान ने शाजिया की तरफ देखते हुए कहा, अरे तुमने ये क्या हालत बनाई हुई है,
पता भी है कितनी ठंड है और तुम बिना चादर दुपट्टे के ऐसे गीले कपड़े पहनकर ऊपर आ गई हो। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? शाजिया ने नुमान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो वहीं बिना पलकें झपके आंखें फाड़े नुमान की तरफ देख रही थी। नुमान ने कहा, तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही क्या? इस वक्त शाजिया अचानक छत की दीवार पर खड़ी हो गई और छत से बाहर गली में देखने लगी। नुमान ने चीख कर कहा, ये तुम क्या कर रही हो पागल लड़की? ये सुनते ही शाजिया ने नुमान की तरफ ऐसे देखा कि शाजिया के पूरे जिस्म का रुख बाहर गली की तरफ था और सिर्फ गर्दन पूरी तरह मुड़कर नुमान की तरफ हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे शाजिया का मुंह इसकी कमर वाली साइड पर लगा हुआ है। ये देखकर नुमान के रोंगटे खड़े हो गए और शाजिया नुमान की तरफ देखते हुए हंसने लगी। ये देखने के बाद अब नुमान को यकीन हो गया था कि ये शाजिया नहीं बल्कि कोई और ही चीज है। नुमान जल्दी से फैसल को लेकर सीढ़ियों की तरफ गया तो शाजिया भी जानवरों की तरह हाथों पैरों से दीवार पर चलती हुई फौरन सीढ़ियों के सामने खड़ी हो गई। नुमान ने जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में मगरिब की अजान की आवाज आई और शाजिया की तरह दिखने वाली चीज अचानक से चीख कर गायब हो गई। नुमान जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ते हुए छत से नीचे चला गया और नीचे जाते ही अपने कमरे में गया तो देखा कि शाजिया अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करते हुए अजीब तरीके से बेड पर करवटें बदल रही थी। ये देखते ही नुमान ने कहा, क्या हुआ शाजिया, और तुम ये क्या कर रही हो? शाजिया ने अचानक डरावनी सी शक्ल बनाकर नुमान की तरफ देखा और फिर से गुर्राते हुए बेड पर लूट पूट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शाजिया ये अजान की आवाज सुनकर ये सब कर रही है। ये देखकर नुमान शाजिया की तरफ देखते हुए पीछे की तरफ चलता हुआ कमरे से बाहर निकल आया और कमरे को बाहर से कुंडी लगा दी। इस कुंडी को देखता हुआ पीछे हट रहा था कि इतने में आमना ने नुमान की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ बेटा? नुमान ने चौंक कर आमना की तरफ देखा और अपने कांपते हुए हाथ से बिना बोले ही दरवाजे की तरफ इशारा करने लगा। आमना ने जब नुमान की हालत देखी तो वो भी डर गई और नुमान को साथ लेकर वहां से सहन में आ गई। इतने में अजान खत्म हो गई और शाजिया के कमरे के दरवाजे पर धड़ धड़ की आवाज आने लगी, जैसे कोई जोर जोर से दरवाजे पर मुक्के मार रहा हो। इतने में नादिया भी ये आवाज सुनकर आई और दरवाजे की तरफ गौर से देखने लगी और आमना की तरफ देखते हुए बोली, अम्मी ये क्या हो रहा है दरवाजे को? आमना ने कहा छोड़ इसे और जल्दी से यहाँ आ जाओ, दरवाजे के पीछे कोई शैतानी चीज है। ये कहते हुए आमना ने नुमान की तरफ देखा तो वो डर से थर थर कांपते हुए दरवाजे की तरफ देख रहा था और फिर फैसल को चूमते हुए कहने लगा, अम्मी मैं अब अपने बच्चे को इस डाइन के हवाले कभी नहीं करूंगा। ये कहते हुए नुमान ने फैसल को आमना की गोद में दिया और खुद आगा साहब को फोन करके शाजिया के बारे में बताने लगा। आगा साहब ने कहा, मैं जिस बाबा को जानता हूँ वो कल आएगा क्योंकि आज वो किसी काम से कहीं गया हुआ है। तुम ऐसा करो कि मस्जिद से किसी मौलवी साहब को लेकर आओ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। नुमान ने कहा, ठीक है। ये कहते हुए नुमान ने फोन काटा और आमना को आगा साहब के साथ हुई बात के बारे में बताकर मस्जिद की तरफ चला गया। इतने में आमना ने नादिया को कहा, चलो बेटी हम अपने कमरे में चलते हैं। ये कहकर आमना फैसल को गोद में लिए नादिया के साथ अपने कमरे में चली गई और फिर से दरवाजा बंद करके माँ बेटी सहम कर बैठ गई। इतने में एक जोरदार धाड़ की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किसी दरवाजे को लात मारकर खोला हो। ये आवाज सुनते ही आमना और नादिया आपस में लिपट कर बैठ गईं और डर से कांपने लगी। नादिया आमना की तरफ देखकर कुछ बोलने लगी तो आमना ने फौरन अपनी उंगली अपने होंठों पर रखते हुए नादिया को खामोश रहने का इशारा किया और नादिया चुपचाप बैठी रही। इतने में आमना के कमरे के बाहर से डरावनी सी आवाजें आने लगी और किसी के भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई तेजी से गुर्राता हुआ भागकर कहीं जा रहा हो और फिर से वापस आकर आमना के दरवाजे पर खड़ा हो और तेजी से सांस लेता हुआ दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हो।
आमना ने मुंह में ही आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की तो फिर से भागते हुए कदमों की आवाज आई, जैसे कोई भागकर कहीं चला गया हो। आमना आयतल कुर्सी पढ़ती रही। इतने में बाहर गेट के खुलने की आवाज सुनाई दी। आमना ने सरगोशी में नादिया से कहा, नुमान आ गया है, तुम फैसल के साथ कमरे में ही रहना, जब तक मैं ना कहूं बाहर ना निकलना। ये कहकर आमना ने आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोली और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर दरवाजे के अंदर से ही बाहर झांकने लगी। लेकिन आमना को बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था। तो आमना ने नादिया से कहा, मेरे बाहर जाते ही कमरे को अंदर से बंद कर लेना, मैं नुमान को देखने जा रही हूं। ये कहकर आमना दरवाजे से बाहर निकली और नादिया ने फौरन आहिस्ता से दरवाजा बंद कर लिया और आमना आहिस्ता से कदम बढ़ाकर अपने कमरे से थोड़ी दूर गई और इसने शाजिया के कमरे की तरफ देखा तो शाजिया के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर जब आमना अभी बाहर सहन की तरफ जा ही रही थी कि अचानक आमना को अपने पीछे से किसी के खौफनाक तरीके से हंसने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही आमना के रोंगटे खड़े हो गए। और जैसे ही आमना ने डरते हुए अपने पीछे देखा तो शाजिया आमना के दरवाजे की छत के साथ छिपकली की तरह चिपटी हुई थी और इसकी शक्ल पूरी तरह से भयानक हो चुकी थी। और वो आमना को देखते ही छिपकली की तरह रेंगते हुए छत से दीवार पर आई और दीवार से चिपके हुए ही तेजी से चलती हुई आमना की तरफ बढ़ी। इसको अपनी तरफ आते देखकर आमना के पैरों तले से जमीन निकल गई। आमना ने जल्दी से बाहर गेट की तरफ भागते हुए आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और भागते हुए गेट से बाहर गली में चले गई। और शाजिया गेट के अंदर खड़ी आमना को अपने खौफनाक टेढ़े मेढ़े हाथों से आमना को वापस अंदर आने का इशारा करते हुए हंसने लगी। आमना आयतल कुर्सी पढ़ती रही और शाजिया फिर वापस घर के अंदर चली गई। आमना ने आयतल कुर्सी पढ़ते हुए इधर उधर देखा तो आमना को दूर से नुमान की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जब गाड़ी आमना के करीब आकर रुकी तो आमना ने देखा कि नुमान के साथ कोई दाढ़ी वाला आदमी भी गाड़ी से निकल रहा था। नुमान ने गाड़ी से निकलते ही आमना की तरफ देखते हुए हैरत से कहा, अम्मी क्या हुआ, आप यहाँ बाहर क्यों खड़ी हैं? आमना ने कहा, बेटा शाजिया अपने कमरे से बाहर आ चुकी है। नुमान ने कहा, क्या, वो कैसे बाहर आ गई? मैंने तो इसे कमरे में बंद किया था। आमना ने कहा, बेटा ये मुझे नहीं पता, पर अभी इन बातों का वक्त नहीं है, पहले तुम अंदर चलो, नादिया और फैसल मेरे कमरे में हैं और वो शैतानी डायन कमरे के बाहर घूम रही है। नुमान ने मौलवी साहब को कहा, मौलवी साहब जल्दी अंदर चलें, मेरी बहन और बेटे की जान खतरे में है। ये कहते हुए नुमान आमना और मौलवी साहब के साथ जल्दी से घर के अंदर गया तो देखा कि आमना के दरवाजे का कमरा खुला हुआ था। आमना ने दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहा, हाय मेरी बच्ची। ये कहते हुए जब आमना कमरे में गई तो नादिया एक कोने में बेहोश पड़ी थी और फैसल वहां नहीं था। आमना और नुमान दौड़कर नादिया के पास गए। फिर आमना नादिया को होश में लाने की कोशिश करने लगी। इतने में नुमान ने आमना की तरफ देखते हुए कहा, अम्मी फैसल कहाँ है? आमना नादिया का सर अपनी गोद में रखते हुए बोली, बेटा फैसल तो नादिया के पास ही था, पर मैंने नादिया से कहा था जब तक मैं ना कहूँ दरवाज़ा मत खोलना, पर देखो ये क्या हो गया मेरी बेटी को, और फैसल भी लापता है। ये सब मेरी गलती है। नुमान ने जल्दी से नादिया को उठाया, इसे बेड पर लेटा दिया और जल्दी से पानी लाकर नादिया के मुंह पर पानी की छींटे मारे और कुछ देर में नादिया होश में आई तो आमना ने नुमान की तरफ देखने लगी, फिर एकदम से डरकर आमना के गले से लगकर रोने लगी। आमना ने कहा, रो मत मेरी बेटी, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नादिया मुसलसल रोए जा रही थी और डर से कांप रही थी। आमना ने नादिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी कुछ नहीं होगा, बस अब चुप हो जाओ। इतने में आगा साहब भी आ गए और आते ही नादिया को देखकर बोले, क्या हुआ मेरी बेटी को? फिर आगा साहब ने आमना की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ यहाँ? आमना ने आगा साहब को जो हुआ इस बारे में बताया तो आगा साहब ने नादिया से कहा, बेटी रो मत, देखो मैं आ गया हूँ। इतने में नुमान ने नादिया की तरफ देखते हुए कहा, नादिया फैसल कहाँ है? नादिया ने रोते हुए कहा, जब मैं कमरे में थी तो मुझे अम्मी ने कहा, बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ।
तुम्हारी अम्मी। और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो अम्मी नहीं, कोई डरावनी भयानक शक्ल वाली औरत थी। फिर इसने मेरा गला पकड़ लिया था और फैसल को मुझसे छीनकर मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मुझे चक्कर सा आया। बाकी मुझे कुछ याद नहीं कि ये कहते हुए नादिया फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आगा साहब ने आमना से कहा, तुम इसे संभालो और कमरा अंदर से बंद कर लो, हम फैसल को देखते हैं। ये कहते हुए आगा साहब, नुमान और मौलवी साहब आमना के कमरे से बाहर आ गए और आमना ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और नुमान बाकी लोगों के साथ शाजिया के कमरे में गया तो वहाँ शाजिया नहीं थी। इसके बाद सब लोग ऊपर वाली मंजिल पर गए लेकिन शाजिया और फैसल वहाँ भी नहीं थे। इतने में छत पर किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी। आगा साहब और नुमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर तेजी से ऊपर छत की तरफ दौड़े और जैसे ही नुमान वगैरह छत पर पहुंचे तो देखा कि कोई छोटा सा बच्चा ठंडी जमीन पर बिना कपड़ों पर लेटा हुआ था, लेकिन वो हिलजुल नहीं रहा था। इसे देखते ही नुमान ने कहा, फैसल, और जल्दी से जाकर इसको उठाने लगा तो नुमान ने देखा कि फैसल की एक टांग, बाजू और जिस्म का कुछ हिस्सा नहीं था और फैसल खून में लथपथ था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके जिस्म को किसी ने खा लिया था, जिसकी वजह से फैसल मर चुका था। ये देखते ही नुमान चीखें मारकर रोने लगा और जब आगा साहब ने भी ये सब देखा तो आगा साहब भी घुटनों के बल बैठकर दहाड़े मारते हुए रोने लगे और रोते हुए इन्होंने नुमान को गले से लगा लिया और कुछ देर लपट कर रोने के बाद रोते हुए फैसल की लाश को उठाकर नीचे ले आए। और जब आमना और नादिया ने भी फैसल की लाश को देखा तो आमना ने तो फौरन ही बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी और नादिया रोते हुए आमना को उठाने लगी। फिर आगा साहब आमना को होश में लाए तो एक बार फिर से सब धाड़े मारकर रोने लगे। इतने में किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और सब लोगों ने देखा कि शाजिया उल्टे पैरों के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर कर आई, क्योंकि इसके पाँव के पंजे उल्टी तरफ थे। जिसे देखकर मौलवी साहब ने कहा, ये कोई लड़की नहीं बल्कि ये शैतानी चीज़ है, कोई इसके करीब मत जाए। शाजिया सीढ़ियों पर बैठ गई। इसके मुंह पर काफ़ी सारा खून लगा हुआ था। इस दौरान वो पागलों की तरह खौफनाक आवाज़ में हंसने लगी और नुमान की तरफ देखते हुए डबल आवाज़ में बोली, क्या कहा था तूने कि अब मैं अपने बेटे को इस डाइन के हवाले नहीं करूँगा? तो देख, आज तेरा बच्चा तेरे पास भी नहीं रहा। मैं इस बच्चे से बहुत प्यार करने लगी थी, पर तूने मुझे इस बच्चे से दूर करने की बात करके मुझे गुस्सा दिलाया था। और देख, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ। अब तू अपने बच्चे को तरसेगा और जब भी तेरी कोई औलाद होगी मैं इसका यही हाल करूँगी। वैसे तेरे बच्चे का गोश्त बहुत लजीज है, अब ये मरा हुआ बच्चा मुझे दे दे। वैसे भी अब ये तेरे किसी काम का नहीं है, ला मैं इसे खा लेती हूँ। ये कहते हुए शाजिया फिर से हंसने लगी। मौलवी साहब ने कुछ पढ़ा और शाजिया की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही शाजिया ने मौलवी साहब को अपनी तरफ आते देखा तो इसने मौलवी साहब पर हमला करने की कोशिश की। तो मौलवी साहब ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसके नाखून बाहर निकले हुए थे, जैसे कि किसी खूनख्वार जानवर के नाखून बाहर निकले होते हैं। मौलवी साहब ने इस पर फूंक मारी तो शाजिया चीखते हुए तड़पने लगी, लेकिन मौलवी साहब ने इसका हाथ नहीं छोड़ा। और फिर मौलवी साहब ने जेब में से एक तवीज़ निकालकर शाजिया के गले में डाल दिया और तवीज़ के गले में डालते ही शाजिया कांपने लगी और फड़फड़ाने लगी। फिर अचानक झटके से बेहोश होकर गिर गई। फिर मौलवी साहब ने नुमान से कहा, इसे उठाकर अंदर ले जाओ। नुमान ने कहा, इस मनहूस से मेरा कोई वास्ता नहीं है, इसको उठाकर घर से बाहर फेंक दो। ये सुनते ही मौलवी साहब ने कहा, देखो जवान, मैं ये तो नहीं जानता ये लड़की कौन है, पर इतना ज़रूर कहूँगा जो भी हुआ इसमें इस मासूम का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये जो भी तुम्हारे बच्चे के साथ हुआ है वो इसने नहीं बल्कि इसके अंदर जो शैतानी चीज़ है इसने किया है। इसको तो पता भी नहीं है कि क्या हुआ है। नुमान ने कहा, मौलवी साहब ये सब इसी का किया है, इसको मेरी नज़रों के सामने से दूर कर दो। इतने में आगा साहब ने कहा, नुमान वो तुम्हारी बीवी है और फैसल की माँ भी है
और तुम इस घड़ी में इस पर और जुल्म मत करो। देखो मौलवी साहब ठीक कह रहे हैं, जो भी हुआ इसमें शाजिया का कोई कसूर नहीं है। मौलवी साहब ने कहा, क्या ये लड़की फौत हुए बच्चे की माँ है? आगा साहब ने कहा, जी मौलवी साहब। ये सुनकर मौलवी साहब ने कहा, तो फिर ये बात सुन लो, एक माँ कभी अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं कर सकती जैसा तुम समझ रहे हो, बल्कि माँ तो अपनी औलाद के लिए अपनी जान भी दे देती हैं। इसलिए मेरा तुम सबको यही मशवरा है कि इस पर और जुल्म मत करना, क्योंकि जब ये होश में आएगी तो बच्चे की लाश देखकर इस पर क्या गुजरेगी वो तो यही जानती है। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ा दचका इस लड़की को ही लगेगा। नुमान ने मौलवी साहब की तरफ देखते हुए कहा, पर मौलवी साहब ये तो होश में आकर हमें भी मार सकती है। मौलवी साहब ने कहा, जब तक ये तवीज़ इसके गले में है तब तक ये किसी को कुछ नहीं कह सकती। बस ये तवीज़ इसके गले में से मत उतरने देना, क्योंकि मैंने इस तवीज़ के ज़रिए इसके अंदर की शैतानी चीज़ को अभी फ़िलहाल इससे दूर कर दिया। लेकिन अगर आप इसको नमाज पढ़ने की तरफ लगा लें तो वो शैतानी चीज़ हमेशा के लिए इसे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चली जाएगी। ये सुनकर नुमान उठा और आमना की मदद से शाजिया को कमरे में ले गया और बेड पर लिटाकर वापस आ गया। और मौलवी साहब ने कहा, अगर किसी वजह से तवीज़ उतर भी जाए तो 11 मरतबा सूरत नास पढ़कर इस पर फूंकते रहना और 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर पानी पर दम करके इसको पिला देना, तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगी। और मुझसे दोबारा तवीज़ लेकर इसके गले में डाल देना। ये कहकर मौलवी साहब चले गए। फिर कुछ देर बाद जब शाजिया को होश आया तो वो कमरे से बाहर आई और जैसे ही शाजिया की नज़र फैसल पर पड़ी तो वो अपने होश खो बैठी और चकरा कर ज़मीन पर गिर पड़ी। नुमान ने जल्दी से शाजिया को उठाया और फिर से इसको होश में लाया तो शाजिया तो अपना सर ज़मीन पर पटक कर रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, क्या हुआ मेरे बच्चे को? कोई बताता क्यों नहीं क्या हुआ मेरे फैसल को? फिर नुमान का गिरेबान पकड़कर बोली, क्या किया है मेरे फैसल के साथ? ये कहते हुए फिर से अपना सर पटकते हुए रोने लगी। शाजिया का सर फट गया तो आमना ने जल्दी से शाजिया को पकड़ कर गले से लगा लिया और रोते हुए कहने लगी, सब्र करो मेरी बच्ची, सब्र करो। इतने में आगा साहब ने शाजिया के घर भी इतला दी और कुछ देर में शाजिया के घर वाले भी आ गए और इन्होंने भी सारा वाक़या सुनाया। तो हाजरा ने कहा, मैंने पहले ही इन बच्चों को मना किया था, लेकिन आप लोगों ने इन बच्चों को निकलने ही नहीं देना था। हमारी बच्ची में तो ऐसी कोई शैतानी चीज़ थी ही नहीं, फिर कैसे वो चीज़ें हमारी बेटी के अंदर आ गईं? मुझे तो लगता है ये सब छिले में बाहर निकलने की वजह से हुआ है और ये सब आप लोगों की गलती की वजह से हुआ है। आप लोग ना इनको बाहर जाने देते और ना मैं अपनी बेटी की गोद उजड़ते हुए देखती। ये सब आप लोगों ने किया है। ये कहते हुए हाजरा आमना को बुरा भला कहने लगी। इतने में जज्जी ने आगे बढ़कर हाजरा को पकड़ा, आमना से दूर करके बैठा दिया और फिर वो सब भी रोने धोने लगे। फिर काफ़ी देर बाद फैसल का कफन दफन किया और पूरी रात पूरा घर सोग में डूबा रहा। नुमान आगा साहब और जज्जी के साथ बैठा हुआ था। अचानक आगा साहब ने नुमान से कहा, नुमान, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि शाजिया के अंदर वो शैतानी चीज़ कैसे आ गई। हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। नुमान ने कहा, अब्बू, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपसे एक बात छुपाई थी और इसी वजह से शायद मैंने आज अपने फैसल को खो दिया। आगा साहब और जज्जी ने हैरानी से नुमान की तरफ देखा। फिर आगा साहब ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो और क्या बात छुपाई थी तुमने? नुमान ने आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, अब्बू, याद है ना, एक दिन पहले रात को मेरी गाड़ी का टायर फट गया था। आगा साहब ने कहा, हाँ, अभी कल की ही बात है। नुमान ने कहा, जब आप गाड़ी लेकर आए थे तो इससे पहले हमारे साथ इस कब्रिस्तान के पास बहुत कुछ हो चुका था, पर मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई थी। आगा साहब ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। इस दौरान जज्जी भी अनजानों की तरह ये सब सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था।
کہ آخر ہوا کیا تھا۔ نعمان نے پھر آغا صاحب اور ججی کو اس واقعے کی ایک ایک صاف صاف بات بتائی اور آغا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور ججی پھر سے رونے لگا۔ روتے ہوئے کہنے لگا، کاش مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تمہیں اس رات اپنے گھر سے نکلنے ہی نہ دیتا۔ یہ میری غلطی ہے، کیوں میں نے تمہیں نہیں روکا، کیوں میں نے تمہیں جانے دیا، میں بہت برا ہوں، بہت برا۔ آغا صاحب نے ججی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، صبر کرو ججی، تم ہی ایسے رونے لگو گے تو ہم ان بچوں کو کیسے سنبھال پائیں گے، صبر کرو میرے محسن، صبر کرو۔ پھر نعمان نے آغا صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو مجھے معاف کر دیں، میں بس آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم گھر آ گئے ہیں، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ابو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں سے ہم شازیہ کے ساتھ کسی شیطانی چیز کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں۔ آغا صاحب نے کہا، غلطی تو تم نے کی ہے، پر تمہاری اس ایک غلطی کی وجہ سے آج سارے گھر والے سوگوار ہیں۔ اگر تم نے مجھے اسی رات ہی سب کچھ بتا دیا ہوتا تو شاید آج ہم لوگ ایسے نہ بیٹھے ہوتے۔ نعمان نے روتے ہوئے کہا، ابو مجھے معاف کر دیں، میں آپ سب لوگوں کا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہتے ہوئے نعمان پھر سے آغا صاحب کے گلے لگ کر رونے لگا۔ آغا صاحب نے بھی آنکھوں میں آنسو لیے نعمان سے کہا، بیٹا اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اس سب میں ہم سب بھی کہیں نہ کہیں خود کو خطا کار سمجھتے ہیں۔ کاش آمنہ نے تمہیں باہر جانے نہ دیا ہوتا، اور کاش تم حاجرہ کی بات پر عمل کرتے۔ ججی نے کہا، آغا صاحب اس سب میں میرا بھی سب سے بڑا گناہ ہے جو میں نے حاجرہ کی باتوں کو فضول کہتے ہوئے ان بچوں کا ساتھ دیا۔ آغا صاحب نے کہا، ججی شاید ہم سب کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اتنے میں آمنہ آئی اور نعمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا شازیہ کو بھی دیکھ لو، وہ بیچاری بار بار بے ہوش ہو رہی ہے، اسے کچھ کھلا دو، مجھے لگتا ہے اس نے گزشتہ رات سے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ یہ سن کر نعمان شازیہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ شازیہ فیصل کے کپڑے ہاتھوں میں لیے بے ہوش پڑی تھی، اور حاجرہ نے نعمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا شازیہ کو دیکھو، یہ بار بار بے ہوش ہو رہی ہے، اس کو بہت کمزوری ہو گئی ہے، اسے کچھ کھلا دو۔ نعمان شازیہ کے پاس بیٹھ گیا اور اسے ہوش میں لا کر کچھ کھلانے لگا۔ شازیہ نے کہا، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے بس میرا فیصل چاہیے، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ نعمان نے کہا، شازیہ صبر کرو، مجھے پتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، پر فیصل جنت میں چلا گیا ہے، اللہ ہمیں پھر سے ہمیں اپنی رحمت سے نوازے گا انشاءاللہ، چلو اب کچھ کھا لو۔ شازیہ نے فیصل کے کپڑوں کو چومتے ہوئے کہا، میرا دل نہیں کر رہا، مجھے صبر نہیں آئے گا، میرا فیصل زمین کے نیچے چلا گیا ہے، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ کھا لوں، لیکن مجھے بھی اپنے بچے کے پاس جانا ہے، مجھے میرا بچہ واپس چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے شازیہ پھر سے روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ نعمان بھی شازیہ کی حالت دیکھ کر رونے لگا، اور پھر کچھ دیر میں سب لوگ شازیہ اور نعمان کے پاس بیٹھے رہے۔ اتنے میں حاجرہ نے آمنہ سے کہا، آمنہ باجی اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ہم شازیہ کو کچھ دن کے لیے اپنے گھر لے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں رہے گی تو اسے بار بار فیصل کی یاد ستائے گی، اور جب ہم شازیہ کو ساتھ لے جائیں گے تو اس دوران آپ لوگ فیصل کی ساری چیزوں کو اس کے کمرے سے اٹھا لینا تاکہ شازیہ کو صبر آ سکے۔ آمنہ نے کہا، جی ٹھیک ہے، آپ شازیہ کو لے جائیں۔ اس کے بعد حاجرہ اور ججی وغیرہ شازیہ کو اپنے گھر لے آئے، اور جیسے تیسے کچھ دن سوگ کرنے کے بعد شازیہ کچھ سنبھالنے لگی، اور اس دوران نعمان بھی اکثر شازیہ سے ملنے ججی کے گھر آ جاتا تھا۔ پھر کچھ دن ایسے ہی گزرے اور شازیہ اب پوری طرح فیصل کے غم سے ابھر چکی تھی۔ ایک دن شازیہ کے محلے کی ایک سہیلی رمشا شازیہ کو اپنے ساتھ بازار لے کر جانے لگی۔ شازیہ نے حاجرہ سے اجازت لی اور اپنی سہیلی کے ساتھ بازار چلی گئی۔ وہاں رمشا نے کچھ جویلری وغیرہ لی، اور پھر رمشا نے شازیہ کے لیے بھی ایک فینسی چین خریدی جو کہ شازیہ کو بہت اچھی لگی تھی، لیکن شازیہ نے وہ نہیں خریدی، بس دے کر رکھ دی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے رمشا نے وہ چین شازیہ کے لیے خرید لی۔ شازیہ نے بہت منع کیا، پر رمشا نے کہا، میری خوشی کے لیے رکھ لو۔ شازیہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شازیہ اور رمشا دونوں گھر آ گئیں اور اپنی باتوں میں مصروف ہو گئیں۔
इस दौरान जज्जी भी घर खाना खाने के लिए आया हुआ था। हाजिरा ने जज्जी के आगे खाना रखा तो जज्जी खाने से बेखबर होकर शाजिया को अपनी सहेली के साथ हंसता खेलता देख रहा था। फिर जज्जी ने हाजिरा की तरफ देखते हुए कहा, देखो हाजिरा, आज हमारी बच्ची बहुत खुश लग रही है और ऐसा लगता है जैसे आज ये फैसल के गम से पूरी तरह बाहर आ चुकी है। हाजिरा ने कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है। फिर जज्जी ने मुस्कुराते हुए हाजिरा से कहा, आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम चाहे इतना पढ़ी लिखी नहीं हो पर तुम्हारी बातों में हिकमत ज़रूर होती है और तुम्हारा शाजिया को अपने साथ लाने का फैसला 100% दुरुस्त था। हाजिरा ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि पढ़ाई का ज़िंदगी में बहुत ऊंचा मुकाम है और पढ़ाई सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। लेकिन इसके साथ हमारे बुजुर्गों की बातें भी हमें ज़िंदगी की बहुत सी ऊंच नीच के बारे में ख़ास किरदार अदा करती हैं। और देखा जाए तो पढ़ाई भी हमें यही सिखाती है कि हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकें, छोटों से शफकत और बड़ों की इज्जत करें और ख़ास तौर पर अपने बुजुर्गों की बातों और इनकी ज़िंदगी के तजर्बात ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें, ताकि बुजुर्गों की नसीहतों और इनकी दुआओं से हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों और हम कभी भी इनकी बातों को नज़रअंदाज ना करें। इसी वजह से मैंने बस वही किया जो मुझे मेरी वालदा मरहूमा ने मुझे सिखाया था। इन्होंने ही ज़िंदगी के तमाम उतार चढ़ाव, खुशी गमी के बारे में मुझे बताया और सिखाया। मैं जब भी ज़िंदगी में कभी परेशान होती हूँ तो मेरी वालदा मरहूमा भी मुझे इस परेशानी का हल और इस हल के लिए दुआ बताया करती थीं और यही चीज़ मैंने हमेशा शाजिया को सिखाने की कोशिश की है, पर आप और शाजिया हमेशा मेरी बातों को पुराने ज़माने की बातें कहकर नज़रअंदाज कर देते थे। जज्जी ने कहा, हाँ इस बात का मुझे आज तक अफसोस है। बस मैं यही समझता था कि हमारी बेटी पढ़ी लिखी है और आज के ज़माने की एक मजबूत लड़की है और तुम इस पर अपने पुराने ज़माने की बातें थोप रही हो। लेकिन मैं ये भूल गया था कि जिस तरह ज़िंदगी बसर करने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, इतनी ही ज़रूरी हमारे बुज़ुर्गों की बातें और नसीहतें भी हैं। लेकिन आज से मैं भी इन बातों को ज़हन नशीन कर लूँगा। हाजिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलें, देर आए दुरुस्त आए, अब खाना खा लें, ठंडा हो रहा है। जज्जी ने कहा, हाँ मुझे दुकान पर भी जाना है, आगा साहब ने किसी काम से शहर से बाहर जाना है। ये कहते हुए जज्जी खाना खाने लगा। इतने में रिमशा अपने घर चली गई और फिर शाजिया को नुमान का फ़ोन आया तो नुमान ने शाजिया से कहा, शाम को तैयार हो जाना, आज हम बाहर खाना खाएंगे, बहुत दिन हो गए हैं, हम कहीं घूमने नहीं गए। शाजिया ने कहा, अच्छा ठीक है, आप आ जाइएगा, मैं आपको तैयार मिलूंगी। इसके बाद नुमान ने फ़ोन काट दिया और शाजिया ने हाजिरा को नुमान के फ़ोन के बारे में बताया तो हाजिरा ने खुशी से शाजिया के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, हाँ जाओ बेटी और अच्छे से तैयार होकर जाना। शाजिया ने कहा, जी अम्मी। ये कहकर शाजिया अपने कमरे में चली गई और कुछ देर में तैयार होने लगी। इस दौरान शाजिया ने वो चेन निकाली और आईने के सामने खड़े होकर पहनने लगी तो शाजिया ने देखा कि इसके गले में जो तावीज़ है, इसकी वजह से चेन की खूबसूरती कम हो रही है, क्योंकि कभी तावीज़ चेन के ऊपर आ जाता था तो कभी चेन के नीचे आ रहा था, जिसकी वजह से चेन अच्छी नहीं लग रही थी। शाजिया ने अपना तावीज़ उतार कर अलमारी में रख दिया, फिर आईने में अपनी चेन को देखकर बोली, वाओ, अब ये बहुत खूबसूरत लग रही है। इसके बाद शाजिया पूरी तरह से तैयार होकर नुमान का इंतज़ार करने लगी। इतने में शाम हो गई और नुमान भी आ गया। शाजिया ने जल्दी से हाजिरा से इजाज़त ली और नुमान के साथ चली गई। फिर शाजिया ने नुमान के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाया। वहाँ से फारिग होकर दोनों किसी पार्क में चले गए और वहाँ दोनों मियाँ बीवी चहलकदमी करने लगे। इसी दौरान शाजिया एक दरख्त के नीचे से गुजरी तो अचानक शाजिया ने नुमान की तरफ देखते हुए कहा, चलो अब घर चलते हैं, पता नहीं अचानक मेरा सर भारी सा हो रहा है। नुमान ने कहा, यार अभी तो तुम ठीक थी और तुम्हें तो कहा था कि किसी पार्क में चलते हैं, तो अब अचानक क्या हो गया तुम्हें? शाजिया ने कहा, पता नहीं, पर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। ये कहते हुए शाजिया अपने हाथों उंगलियों को अजीब तरीके से खोलने और बंद करने लगी। नुमान ने शाजिया के हाथों की तरफ देखा और बोला, क्या हो रहा है तुम्हें? ये कहते हुए नुमान ने अपना हाथ शाजिया के माथे पर रखा और बोला, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, चलो चलते हैं।
पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ये सुनकर शाजिया बिना बोले ही नुमान के साथ गाड़ी में बैठ गई। फिर नुमान इसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने शाजिया का चेकअप किया तो डॉक्टर एकदम से घबरा गया और शाजिया की तरफ गौर से देखने लगा। नुमान ने हैरत से डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? डॉक्टर ने बिना बोले नुमान की तरफ देखा और फिर से शाजिया का चेकअप करने लगा। जैसे ही डॉक्टर शाजिया को स्टेथोस्कोप शाजिया की कमर पर लगाकर शाजिया से लंबी सांस लेने को कहा तो शाजिया ने सांस ली, लेकिन स्टेथोस्कोप में शाजिया की सांस की जरा भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ये सब देखकर डॉक्टर भी चकरा गया और डॉक्टर ने दूसरा स्टेथोस्कोप लगाया। फिर से वही हो रहा था। डॉक्टर घबरा कर नुमान की तरफ देखता तो कभी शाजिया की तरफ देखता। नुमान ने फिर से डॉक्टर साहब से कहा, आप बता क्यों नहीं रहे, आखिर बात क्या है? डॉक्टर ने फिर दिल की धड़कन चेक करने वाला आला निकाला और शाजिया के दिल की धड़कन चेक करने लगा। इस दौरान शाजिया डॉक्टर की तरफ बिना पलकें झपके देख रही थी। इतने में अचानक डॉक्टर शाजिया से 4-5 कदम पीछे हट गया। शाजिया की तरफ गौर से देखने लगा और फिर दिल की धड़कन चेक करने वाले आले को देखने लगा और नुमान की तरफ देखते हुए बोला, इन्हें यहाँ से ले जाएं, ये मेरी समझ से बाहर है। नुमान ने डॉक्टर से कहा, आखिर हुआ क्या है? मैं कब से देख रहा हूँ आप बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। आखिर आपको चेक करने में दुश्वारी क्यों हो रही है? डॉक्टर ने नुमान की तरफ देखते हुए तल्ख लहजे में कहा, क्योंकि मैं जिंदा लोगों का चेकअप करता हूँ, मुर्दा लोगों का नहीं। नुमान ने डॉक्टर से कहा, क्या मतलब आपका? डॉक्टर ने कहा, ना तो इस लेडी की सांस चल रही है और ना ही इसके दिल की धड़कन चल रही है, और मेडिकल साइंस के हिसाब से ये मुर्दा लोगों की कंडीशन होती है जो कि जिंदा ना हो। नुमान ने हैरत से शाजिया की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है जैसे मेरी बीवी को नहीं आपको चेकअप की जरूरत है, और मुझे लगता है कि मैं किसी पागल खाने के डॉक्टर के पास आ गया हूँ जो कि बहुत ही अजीब किस्म का डॉक्टर है। डॉक्टर ने फिर से नुमान से कहा, अजीब मैं नहीं, अजीब ये लड़की है जिसको साथ लिए तुम घूम रहे हो। ये सुनते ही नुमान ने डॉक्टर को बुरा भला कहा और शाजिया को साथ लेकर वहां से बाहर जाने लगा। और जैसे ही नुमान शाजिया को लेकर क्लिनिक से बाहर निकला तो डॉक्टर इनके पीछे बाहर निकल आया। अपने क्लिनिक के दरवाजे पर खड़ा इनको देखता रहा। इतने में डॉक्टर की तरफ देखा। इतने में नुमान गाड़ी में बैठा और शाजिया ने गाड़ी में बैठने से पहले अचानक खौफनाक सी शक्ल बनाकर डॉक्टर की तरफ देखा तो डॉक्टर को एकदम झटका सा लगा और वो पीछे की तरफ गिर गया। डॉक्टर ने जल्दी से उठकर क्लिनिक का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और दरवाजे के शीशे से बाहर देखने लगा तो शाजिया ने फिर से डॉक्टर की तरफ देखा और मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गई। लेकिन ये देखकर पूरी तरह से डॉक्टर डर गया था। नाजरीन, ये थी कहानी नादान लड़की की खौफनाक दास्तान का तीसरा हिस्सा। इस कहानी का चौथा हिस्सा हम अगली स्टोरी में पेश करेंगे। तो नाजरीन, ये था आज का वाकया। दोस्तों, वाकया पसंद आया हो तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह आपके तमाम घर वालों को हमेशा खुश खुरम रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर किसी के साथ कोई वाकया पेश आया हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वो अपना वाकया वॉइस नोट में हमें मेल करें। हम उसका वाकया अगले दिन अपने वीडियो में नशर करेंगे। शुक्रिया।